بریک کے بعد خوشامدید۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور جسٹس کامران ملا خیل کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ حسین احمد چودھری مزید بتائیں گے۔ جی حسین۔ جی دیکھیں، جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اہم اجلاس ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ چیف جسٹس اور چیئرمین جوڈیشل کمیشن جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ صدر کی منظوری کے لیے وزارت قانون کو بھجوا دیا ہے۔ دوسری اہم تعیناتی بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، جو کہ جسٹس کامران ملا خیل بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں اور جوڈیشل کمیشن نے جسٹس کامران ملا خیل کے نام کی منظوری دیتے ہوئے ان کا معاملہ بھی وزارت قانون کو بھجوا دیا ہے اور صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے۔ تیسری جو مستقل جج کی تعیناتی سے متعلق جو اہم فیصلہ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جو کہ عارضی طور پر آج کل سپریم کورٹ میں تعینات تھے، اب انہیں مستقل جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا تعینات کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا مستقل جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے اور وہ معاملہ بھی جو ہے وہ آگے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تینوں تعیناتیاں آج کے عام اجلاس میں ہوئی ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کمیشن کے قیام کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بل کی حمایت کی۔ اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نئے قانون کی وضاحت کی، کہا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہے، اگر وہ خود کو اس کیٹیگری میں نہیں مانتے تو یہ ان کا اپنا فیل ہے۔ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو آئین کہتا ہے، پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے اور وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو، ان کے حقوق کو تحفظ دو۔ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 کے ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں، اور آرٹیکل 20 کو جب انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے، اس میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور خود کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی شاعر جو ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، ان کو آرٹیکل 20 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ اسی پیرائے میں یہ قانون بنایا گیا۔ جو متعلقہ قوانین اس بابت ہیں ان کی فوقیت رہے گی۔ میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکشن 35 کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں، 36 کو ری نمبر کر کے کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی ارکان نے شور شرابہ کیا۔ ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ ارکان نے ایجنڈے اور بلز کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر کی طرف اچھال دیں۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا، آقا کی حکمت کا ذکر آیا تو فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، انسانی حقوق نہیں مل رہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، یہ اقلیتوں کے حقوق کا بل ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں بل کی حمایت کریں۔ خلاف کوئی بیان اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتا۔ اب آقا کی حرمت کا جب ذکر آیا ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس اور فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، ہیومن رائٹس نہیں مل رہے۔ اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ یہ اقلیتوں کے حقوق کا بل ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ فرق ایشو ہے، آپ کے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا ایشو ہے۔ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جو کرنا ہے کریں، لیکن اس کو اسلامی معاملات سے نہ جوڑیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا حساس معاملات کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ سینسٹیو معاملے کے اوپر ہمیں سیاست میں الجھانا، تقریر شروع کرنی ختم نبوت اور پھر کہنا رہا کرو خادم رسول کو رہا کرو۔ کون خادم نہیں ہے؟ ایوولوشن پروسیس ہوتا رہتا ہے قوانین میں، آئین میں۔ کوئی اگر چیزیں ہیں تو آئیں مل کے بیٹھیں، دیکھیں اس کو۔ ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ یہ حکومتیں آنی جانی ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں کو، سینسٹیو چیزوں کو، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ شروع ہم ہوتے ہیں ناموس رسالت کو غلط کوٹ کر کے، ختم ہوتے ہیں ہم 804 نمبر کے رہائی کے لیے۔ وہ کریں آپ جو کر رہے ہیں 804 نمبر کی رہائی کے لیے جو کچھ کرنا ہے، خدا کے لیے اس کو اس قانون یا کسی بھی جو اسلامی معاملہ اس کو مکس نہ کرے۔ خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری بغیر اطلاع کہیں اور استعمال ہوئی تو سخت ایکشن ہوگا۔ طلال چودھری نے کہا، سرکاری افسران نے اگر صوبے سے باہر کہیں کچھ کیا تو کرمنل مقدمات درج کیے جائیں گے۔
उम्मीद रखते हैं कि केपी के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकार अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली केपी की पुलिस केपी में इस्तेमाल होगी। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी इतला दी जाएगी। इतला के बगैर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दफा 144 जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, मजीद थ्रेट्स मौजूद है। पिंडी में बार बार इज्तिमा किए जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि मुलाकात डिक्टेट नहीं कर सकते आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फलां काम करें। धमकी और धौंस से चाहते हैं मुलाकात। इस तरह का एहतजाज या इस तरह का इज्तिमा खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बायस न बने। बाद में करेंगे ये खुद 9 मई की तरह, लेकिन भरेगा पूरा पाकिस्तान। दहशतगर्द सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हैं, VPN यूज करने से शनाख्त अपनी लोकेशन छुपाते हैं। इसके हल के लिए तरीकाकार ढूंढा जाएगा। तहरीके इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। बानी PTI की रिहाई और मुलाकात कराने का मुतालबा। PTI के अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब मार्च किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। KP में गवर्नर राज नहीं लगेगा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। कराओ, ज़्यादा मुलाकातें कराओ, फैमिली की कराओ, वकला की कराओ, लीडरशिप की कराओ, वो बेहतरीन और अच्छी पैगामात बाहर आएगी। देखो हमारा एक राइट है, अदालत का ऑर्डर है, SOP का तरीक़ाकार है, रूल्स में लिखा हुआ है, क्यों कर आप मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। ये मैं जाके चीफ जस्टिस से वक्त एक रिक्वेस्ट करनी है कि खान साहब की केसेस लगाओ। फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी कहा है कि वी हैव बीन ड्रिवन टू द वॉल। अब दीवार से तो लग गया, अब हमें चुन दे रहे हैं दीवार में मजीद। गवर्नर लॉज कोई नहीं लगेगा, सुबह इन कानून के मुताबिक चलेगा। सियासत में यही होता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करो, एक करे मुज़ाकरात। हमने तो बारहा कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए तो ऐलान किया, अगर बेकअप कर गया तो आप लोग कर गए। खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है? तो वो सिंसियरली बैठे, सिंसियरली बात। मैं मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जिन्हें लगाना है उनसे सवाल करें, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। बानी PTI की मुलाकातों के हवाले से उनका कहना था उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। में गवर्नर राज का इम्कान है या कोई तब्दील होने का, आप क्या समझते हैं? जो लगाएंगे उनसे पूछो, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। आप भी स्टेक होल्डर हैं, आपकी हुकूमत के अरकान है, अब क्या समझते हैं लगना चाहिए? बस ये इरादा है नहीं है, उनसे पूछो। वैसे मुनासिब है सर लगाना, अगर ऐसा कुछ इक़दाम उठाया जाता है तो। गवर्नर राज पे बातें हो रही है पख्तूनख्वा में, इस पर आपका कोई? मेरे इल्म में कोई साहब कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इमरान खान की मुलाकात नहीं होने दे रहे, आप सेनेटर अहमद वली खान ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, गवर्नर राज के मामले से ANP को दूर रखा जाए। जो किया है अब उसे बर्दाश्त करना होगा, कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। करना होगा उधर जिसको बैठाया है उसको सिर्फ फिक्र कह दी 800 चोर की। और बदकिस्मती से गवर्नर राज की बात भी इसलिए नहीं हो रही कि निजाम नहीं है और हुकूमत नहीं है, गवर्नर राज की बात भी इसलिए हो रही है कि उनको फिक्र 800 चोर की। तो ये पूरा हमारा मुल्क और हमारा सूबा कॉम्प्रोमाइज है। गवर्नर राज खुदा के लिए जो भी अफवाह फैला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अवामी नेशनल पार्टी को इन चीज़ों से बाहर रखा जाए। अवामी नेशनल पार्टी की तारीख को जो जानते हैं तो हम कभी भी अमल का साथ नहीं दें। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो का 27वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अली जफर कहते हैं पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था आईनी तरमीम के खिलाफ वोट करना है, लेकिन सैफुल्लाह आबड़ो ने खिलाफ वर्जी की। उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी आर्टिकल 63A। हमने पार्लियामेंट्री कमेटी ने फैसला किया था कि हमने 27वीं तरमीम के खिलाफ उनको इसके खिलाफ वोट करना है, तो हमने उनको शो कॉज दे दिया है। उनका 7 दिन तक जवाब आता है, हम उसको देख के फिर फैसला करेंगे और आगे फिर उनको रेफरेंस फाइल कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो उन्हें दोबारा वोट करने आए थे तो मैंने ये रेज किया था ऑब्जेक्शन कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका अब ये वोट काउंट नहीं हो सकता, वो गिनती में नहीं आ सकता। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि वो इस्तीफा भी मैंने मंजूर नहीं किया और वो इस्तीफा फ्लोर पे दिया है, मुझे कोई राइटिंग में नहीं आया। नज़र तो यही आता है कि वो इस्तीफा सिर्फ एक ड्रामे के लिए था। असल मकसद यही है कि वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और हम उनको कंटिन्यू देंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि बानी PTI की बहन उस्मा खान को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मलिक से, बताएगा बाबर।
जी आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है। रावलपिंडी में 144 है और अडयाला जेल के एतराब में सिक्योरिटी के इंतजाम, रास्ते बंद थे, लेकिन गोरखपुर पर तीनों बहनें उज़मा खानम, नौरीन न्याजी और अलीमा खानम पोची कारकुन बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ताहम पुलिस और कारकुन आमने सामने रहे, लेकिन अभी कुछ देर कबल जो है उज़मा खानम को बानी पीटीआई से मुलाकात की जेल में इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वो अभी तक ताहाल रवाना नहीं हुए। अलीमा खान और नौरीन न्याजी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें भी साथ में इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर भी अडयाला जेल के करीब पहुंच गए हैं। गालिब इम्कान है कि बैरिस्टर गौर को भी जेल में जाने की इजाजत मिल जाए। जी अच्छा बाबर, कब तक उनकी मुलाकात करवाई जाएगी? देखिए जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुकर्रर वक्त है वो तो 4 बजे का, दोपहर 4 बजे तक है, लेकिन अमूमी तौर पर यह भी देखा गया है कि इसके मुकर्रर वक्त के अलावा भी मुलाकात की इजाजत मिल जाए। लेकिन उज़मा खान को मुलाकात की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वो ताहाल जेल की जानिब जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, और बदस्तूर वहाँ गोरखपुर नाके पर पुलिस की दूसरी जानिब वो मौजूद है और इंतजार में है कि इनकी दीगर 2 बहनों को भी इजाजत मिले तो वो जाएं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर भी अडयाला जेल के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। जी अच्छा बाबर, ये बताएगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा इस वक्त जेल के बाहर है? आप जैसे बता रहे हैं क्योंकि बहनें अभी वहां पर मौजूद नहीं हैं। जी मकामी रहनुमा भी आए हैं, कुछ MPAs, कुछ MNA के अलावा जो है PTI के कारकुन जो है यहाँ पे गोरखपुर वाली साइड पे यहाँ पे आए। अगर दायगल की बात की जाए तो वहाँ भी ख्वातीन कारकुनों की और मर्द कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ तक पहुँची है, लेकिन इसके जो बीच का एरिया है दोनों नाकों के दरमियान का, ये एक तरह से लग यही रहा है कि जैसे कर्फ्यू हो। यहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती, पैदल जाने वाले अफराद को भी पूछगछ के लिए जाने दिया जा रहा है। एंटी राइड्स बैरियर्स, डबल बैरियर्स लगाए गए यहाँ पे दोनों जानिब, और मुख्तलिफ मकामात पर मुकम्मल तौर पर कंटेनर और जो ट्रक खड़े करके रास्ते बंद किए गए। बावजूद इसके सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी खुसूसी तौर पर यहाँ पहुंचे इन सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से। उनका यही कहना है। बाबर मलिक इस हवाले से आगाह कर रहे थे। उज़मा खान कुछ देर में अडयाला जेल के लिए रवाना होंगी, उन्हें मुलाकात की इजाजत मिल गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं नोटिफिकेशन में कोई ताख़ीर नहीं, ना ही कोई कन्फ्यूजन है। जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, आज़म साहब ने, कि उसकी जो है कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एज ही इज़ बैक इन द ऑफिस तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें कोई नोटिफिकेशन या कोई नहीं है। वो कुछ लोग जो हैं इसको जान के दे वांट टू एक्सप्लॉइट इट, अदर देन दैट हकीकत नहीं है। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान रोड शो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन शिरकत करेंगे। नई टीमों की खरीदारी में भी बरतानवी सरमायाकारों का गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB कहते हैं लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। रोड शो PSL के बैनुल अक़वामी अपील को मज़ीद फ़रोग़ देगा। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा पाकिस्तानी लीग आलमी फॉलोइंग और मजबूत कमर्शियल वैल्यू रखती है। 30 सुपर फैंस को खुसूसी इवेंट में शिरकत का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा श्रीलंका का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। तीनों मैचेस डम्बोला स्टेडियम में शेड्यूल हैं। दौरे से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अपने तमाम वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आबाई न्यूज़।